Good morning, children. I hope you all are fine and healthy at your home. So today we are going to start our maths class. Today we will discuss about Unit 11 Geometry and your topic is circle. So we are going to start our exercise 11.3. Let us learn about circle and its various parts in this video. So firstly, what is the circle? Circle is the simple closed curved any point of each in an equal distance from the fixed point. Here, this is the fixed point. The fixed point lies inside the circle and its fixed point is called the center. Here you can define circle. A circle is a simple closed curve, every point of which is at equal distance from the fixed point O. Okay, now center, the fixed point inside the circle is called the center. Here you can see in the picture. Radius, the distance from center to any point on the circle is called radius. It means OC is radius. Okay. Now, diameter, a line segment passing through center of circle and having end point on the circle is called diameter. It means कि AB is a diameter. Okay, you can see in the diagram AB black color से एक line segment है जो fixed point O को क्रॉस करते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है. ओके, तो यहाँ पे अगर हम रेडियस की बात करें तो सेंटर हमारा O था. OA इज़ अ रेडियस R, OC इज़ द रेडियस. ओके, एंड वन मोर रेडियस OB. ओके, ये भी आपका क्या है, रेडियस है. इट मीन्स कि जो आपका रेडियस होता है वो डायमीटर का क्या होता है, डबल होता है. ओके, यू कैन सी डायमीटर क्या है, AB. ठीक है, जो हमारे सेंटर को फिक्स्ड पॉइंट को क्रॉस करके निकलता है. तो इट मीन्स कि 2R मिलके कितने डायमीटर बनाते हैं, 1 डायमीटर. ओके, और जो डायमीटर होता है 2R इज इक्वल टू D, यानी 2R मिलके 1 डायमीटर बनाते हैं. और जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, यानी आधा होता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज all the diameter of a circle are equal in length and all the radius of a circle are equal in length. You can see OA, OH, OF, OC, OE, OG, OB, OD. ठीक है, ये रेडियस है. ठीक है, ये O पॉइंट से ये सब इक्वल हैं. अगर हम डायमीटर की बात करें तो DC, ठीक है, HG, BA, ठीक है, FE, ये क्या है, डायमीटर है जो पॉइंट O को क्या करें, कट करके ये क्रॉस कर रहे हैं. ये भी हमेशा इक्वल होते हैं लेंथ में. इट मीन्स कि जो आपका डायमीटर होता है, जो आपका रेडियस होता है, वो अपने फिक्स्ड पॉइंट से क्या होता है, इक्वल होता है. ओके, इन द सर्कल. नाउ you can see in this diagram chord, a line segment joining any two points. A line segment joining any 2 points on the circumference of a circle is a chord of the circle. You can see in the diagram. ठीक है, PQ, PQ, okay, is a chord. PQ is a chord. यहाँ पे आप देख सकते हैं. Now, diameter is the longest chord of a circle. आप देख सकते हैं A से B तक जाने में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस मेज़र करना पड़ता है. GH है कोड, AB कोड है, CD डायमीटर है, EF डायमीटर है. ये सारे डायमीटर, लेकिन सबसे ज़्यादा डिस्टेंस हमें कब मेज़र करना पड़ता है, जब हम A से B पे जाते हैं. ओके, तो डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल. नाउ नेक्स्ट थिंग, circumference, the length of the boundary. The length of the boundary of a circle is its circumference. You can see in this picture arc. Any part of circumference is called arc. PQR is an arc. Is semicircle. Half of a circle is called semicircle. Okay, you can see in the diagram half of a circle is called semicircle. Okay, किसी भी सर्कल का हाफ करेंगे तो सेमी सर्कल कहलाता है. पॉइंट्स टू रिमेंबर, ऑल द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ऑल द रेडी ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस. इट मीन्स कि D इज इक्वल टू 2 इंटू R, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर. इट मीन्स R इज इक्वल टू D अपॉन 2. डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल.
So now we can understand by this paper all the things. Firstly, circle. You all know a circle is closed figure. सबसे पहले ये closed figure होता है. ये सब तरफ से क्या है? Closed है. आपने पढ़ा है closed figure और open figure. तो circle is a closed figure whose every point is the same distance from the fixed point. ठीक है. Fixed point कौन सा होता है? यहाँ पे जो आपका मिड में पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं सेंटर. ठीक है. सेंटर इज अ पॉइंट लाइंग इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल फ्रॉम वेयर ईच पॉइंट ऑफ द सर्कल एट द सेम डिस्टेंस. ओके, तो ये आपका सेंटर हो गया. सेंटर से हम किसी भी पॉइंट पे अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसका डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा. ओके, उसका डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा. ये मैं आपके पॉइंट्स बना रही हूँ. यू कैन सी इन दिस पेपर. आप किसी भी पॉइंट से अगर आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसका डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा. ओके, तो एट फर्स्ट हमने क्या जाना? सर्कल क्या होता है? क्लोज्ड फिगर होता है. सर्कल का जो इंटीरियर पॉइंट होता है, सेंटर होता है, उससे हम किसी भी पॉइंट पे अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसका डिस्टेंस क्या होगा? सब तरफ इक्वल होगा. ओके, नाउ अब हम बात करते हैं रेडियस की. तो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, बट कहाँ से? फ्रॉम द सेंटर. अगर हम सेंटर से किसी भी पॉइंट पे लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं. ठीक है. द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज डायमीटर. ठीक है, डायमीटर. अ लाइन सेगमेंट आप सबको पता है जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं. ठीक है. अ लाइन सेगमेंट विच पास्ड थ्रू द सेंटर. अ लाइन सेगमेंट AB, ठीक है, विच पास्ड थ्रू द सेंटर ये रहा. इसको पास करके, यानी इसको पास करके, सेंटर को पास करके जब दूसरे पॉइंट पे जाते हैं तो ये पूरा क्या कहलाता है? डायमीटर. क्या कहलाता है? डायमीटर. ठीक है, ये क्या कहलाता है? डायमीटर. ये हो गया आपका सेंटर O. ठीक है. डायमीटर यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए इट्स कंपल्सरी कि ये सेंटर से ही होकर के जाएगा. ये डायमीटर कहलाता है. ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें आपको अभी कितने रेडियस दिख रहे हैं तो आप कहोगे दिस वन. फर्स्ट रेडियस ये रहा, सेंटर O से एक रेडियस ये रहा, एंड सेंटर O से एक रेडियस ये रहा. ठीक है, O टू दिस पॉइंट. ओके, तो 1, 2 एंड 3 तो रेडियस है. और डायमीटर की अगर हम बात करें तो डायमीटर क्या हो गया? इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक. ठीक है, इसकी लेंथ भी हमेशा क्या होती है? सर्कल में हमेशा इक्वल लेंथ होती है. आप किसी भी पॉइंट से शुरू करके सेंटर को क्रॉस करके अगर आप दूसरे पॉइंट पे जाते हैं तो लेंथ हमेशा इक्वल होती है. नाउ अब हम बात करते हैं कोड की. कोड क्या होता है? पहले हम इसमें ध्यान से देखें. सपोज दैट ये आपका सर्कल है. लग नहीं रहा सर्कल जैसा, बट ओके, ये आपका सर्कल है और ये आपका सेंटर है. ठीक है, सर्कल पे हम जब कभी भी, ठीक है, लाइन ड्रॉ करते हैं, अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्कल इज कॉल्ड अ कोड. ये रहा. ठीक है, ये रहा. ये सब आपके क्या है? कोड है. ठीक है, AB, CD, EF, ये आपके क्या है? कोड है. ठीक है. ओके, तो ये आपके क्या है? कोड है. अ लाइन सेगमेंट, ये रहा आपका लाइन सेगमेंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है. अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स, जिसका एंड पॉइंट लाई ऑन द सर्कल इज कॉल्ड अ कोड. आपको पता है सबसे बड़ा कोड सर्कल के अंदर कौन सा होता है? डायमीटर. सर्कल के अंदर कौन सा होता है? डायमीटर. सबसे बड़ा कोड अगर आपसे पूछेगा कि सर्कल में सबसे बड़ा कोड कौन सा होता है तो डायमीटर होता है. उसके डिस्टेंस सबसे ज्यादा बड़ा होता है. अगर मैं इसकी बात करूं विच वन इज ग्रेटर? दिस वन इज ग्रेटर. अगर मैं इसकी बात करूं और इसकी बात करूं विच वन इज ग्रेटर लाइन? दिस वन इज ग्रेटर लाइन. ओके, तो ये आपका होगा कोड. अब नाउ हम आते हैं सरकमफेरेंस पे. द मेजर ऑफ द क्लोज्ड कर्व फॉर्मिंग अ सर्कल इज कॉल्ड द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल. दिस इज योर सर्कल. मैंने अभी आपकी बात करी. यहाँ पे मैं कोड बनाती हूँ एक छोटा सा. दिस इज योर कोड A and B. Okay, so AB is your
chord. Okay, now so next thing is circumference. So the length of the boundaries of the circle, it's called is circumference. यानी किसी भी सर्कल की जो लेंथ होती है, सपोज दैट मैंने इस पॉइंट से इसको स्टार्ट किया, ठीक है, सर्कल को बनाना, तो ये इसकी जो लेंथ होगी, ठीक है, इस सर्कल की जो बाउंड्रीज होगी, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, सर्कमफेरेंस कहलाएगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने इतनी लंबी लेंथ की एक वायर लिया है और अगर धीरे धीरे मैं इसको कर्व करना शुरू करूँ लाइक दैट, ठीक है, तो इसका क्या कहलाएगा, सर्कमफेरेंस कहलाएगा. ओके, तो ये सारी डेफिनेशंस थी सर्कल से रिलेटेड. So this is your exercise 11.3 and we have already discussed about circle, circle-related terms like diameter, radius, center, chord, line segment, like that. Okay, so here your question number 1 is identify the circles and color them. हमें ये different type के pictures हैं, there is a different type of pictures and we have to identify which one is circle. Okay, and color it. उसे color भी करना है. So firstly you can see this shape is a square, so this is not a circle, so leave it. This shape is a triangle, this is not a circle, leave it. Now this shape, this is the circle. Okay, ये आपको चारों तरफ से गोल नजर आ रहा है, राउंड शेप में नजर आ रहा है, it means this is a circle, so you have to color this shape. Okay, now rectangle, leave it. ये ओवल शेप है आपका, ठीक है, ये आपका सर्कल है, नो, दिस वन, ये सर्कल जैसा लग तो रहा है, इट लुक्स लाइक अ सर्कल बट दिस इज नॉट एक्चुअली सर्कल, इट्स अ ओवल शेप. अगर मैं इसको अपनी कलरफुल शीट पे जस्ट लाइक ड्रॉ करती हूँ, ओके, अगर इसका मैं सेंटर यहाँ लेती हूँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है, इस सेंटर से, ठीक है, इस पॉइंट तक अगर मैं इसका स्केल से या रूलर से अगर मैं इसको देखूँ ये कितने सेंटीमीटर का है, तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ आएगी, क्या वो यहाँ से यहाँ तक आएगी, नो, इसके कंपैरिजन में ये बड़ा दिख रहा है. ओके, तो जो आपका ओवल शेप होता है वो सर्कल जैसा लगता तो है बट वो सर्कल होता नहीं है, बिकॉज उसका जो डिफरेंट पॉइंट पे लेंथ होता है वो डिफरेंट होता है. ठीक है, देखो यहाँ पे इसका छोटा लेंथ है, यहाँ पे इसका लेंथ क्या है, बड़ा है. ओके, तो दिस इज नॉट अ सर्कल. यस, दिस वन, यस, दिस वन इज सर्कल. ठीक है, यहाँ पे 2 सर्कल्स हमें नजर आ रहे हैं और दोनों का अगर किसी भी पॉइंट से हम अगर उनको हम काउंट करें या हम उनका है ना मेजर करें उनको, उनकी लेंथ को, तो वो हमेशा इक्वल आएगा. This is not a circle, this is not a circle, this is not a circle. Now question number 2, draw different size of a circle using 1 rupees coin. अब आपको अपनी कॉपी में अलग अलग टाइप के सर्कल्स ड्रॉ करने हैं. फर्स्टली यू हैव टू टेक 1 rupees coin एंड यू ड्रॉ अ सर्कल, अ बैंगल. आपको मम्मा की चूड़ी लेनी है एंड आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है एंड द राउंड कैप ऑफ एनी बॉटल, या फिर किसी भी वाटर बॉटल की आपको राउंड कैप लेनी है. वाटर बॉटल की बोला, ये रहा वो एक वाटर बॉटल है, इसकी आपको कैप लेनी है एंड यू हैव टू ड्रॉ द सर्कल. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू फिल दिस एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1 यू हैव टू फिल इन अ बुक एंड क्वेश्चन नंबर 2 you have to fill in a copy. Okay, you have to do in a copy. Okay, so I think all doubts have been clear and do more practice because your PT2 exam is coming soon, you know very well, and do more practice and learn the table again and again. Thank you and have a nice day.